You are all aware that today a very egregious and ignominious incident has occurred inside the parliament, and I think you have all witnessed it. So, from our side, today our leader Rahul Gandhi ji secured his position as a questioner during the question hour of Parliament. Whenever a member gets the rare opportunity of being listed during question hour, he used to prepare himself to put the questions in right perspective, and accordingly Rahul Gandhi ji also has prepared himself. When his turn comes, Rahul Gandhi ji stood up and mentioned the serial number of his question, as is customary in our parliamentary proceedings during question hour. The minister concerned, who is supposed to first lay the paper on the floor of the house in regard to that question. This is the normal procedure. But instead of mentioning that the paper is being laid on the table or the paper has been laid on the table, the concerned minister has started rolling out some papers at his disposal and started accusing as well as abusing Rahul Gandhi ji of some statement Rahul Gandhi ji had made outside of the parliament. The statement that Rahul Gandhi ji had made outside of the parliament does not have any relevance or any correlation of this question. So we protested against the way minister was delivering his reply. Our argument was that the question has been asked by Rahul Gandhi ji and you should reply the pertinent questions in a right perspective. That is the procedure. But while ignoring this method, you started accusing and abusing Rahul Gandhi ji, which naturally drew flack from our end. The way minister rolled out some papers before accusing Rahul ji, it is clearly established that it was a deliberate, premeditated way of accusing Rahul Gandhi ji. This is the first part of our protest. Meanwhile,
a couple of members from our end, they got agitated because the way minister concerned delivered his reply triggered a huge protest from our end. So by getting emotionally upsurged, a couple of members rushed to the well and lodging the protest against the concerned minister. Maybe the way they were protesting wrong, but the fact is the genesis of today's disturbances and the boisterous scene inside the parliament lied with Minister Harshavardhan ji. He had triggered today's disturbances and protest. So after that we met Honorable Lok Sabha Speaker and lodged our protest by saying that it was the right and privilege of Rahul Gandhi ji to ask questions as it has been listed by Parliament, which had been trampled upon by Minister himself. So it is our demand to the Speaker that Minister should express his regret, and if anything is found wrong according to this script of the camera, we are ready to express our regret also. But again I am saying that without rhyme any reason, without any provocation, the senior minister himself had expressed and displayed the uncouth behavior which is really unprecedented in our house. So these are the points that we have today raised and explained before you. So after the first address, Rahul Gandhi met Yes, both of them. Rahul Gandhi met the speaker of Mumbai. What happened in the chamber? Inside the chamber, from our end, we lodged our protest by saying that the individual members' rights and privileges that are entitled in the house has been trampled upon by the minister himself. So Rahul Gandhi ji has pleaded that my rights and privileges should be restored and the opportunity should be given to me for asking the questions for which I was enlisted and I am entitled. My rights and privileges should not be bulldozed, and I may be given further opportunity once the house will set in motion. Is there anything about apologies का आपने कहा था? नहीं. मैंने कहा स्पीकर को हाँ, again in the chamber of the speaker I have proposed
that the concerned minister should seek and beg apology for his unparliamentary behavior. And also I have said that our member certainly rushed to the well. Again I am saying that due to the emotional upsurge that had been triggered by the minister himself, that if anything is found wrong, we are also ready to express our regret. एक मिनट उधर बाद में, अभी बाद में बोले, माफी नहीं बोला है वो माफी, अभी भैया सवाल बाद में करते हैं या हिंदी में, चलो बोल दें आप 1 मिनट। स्पीकर साहब से हम मुलाकात किए थे स्पीकर साहब से सदन एडजॉर्न होने के बाद, और स्पीकर साहब से जाकर हमने ये शिकायत दर्ज किया कि राहुल गांधी जी की आज सवाल करने का जो मौका मिला था वो एक इंडिविजुअल मेंबर की हैसियत से उन्हें मिला, क्योंकि इसके लिए बड़ा मशक्कत करने पड़ता हम लोगों को। किसी की अगर नाम लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में आ जाते तो हम उनको बड़ा नसीबवर समझते। बड़े मशक्कत की बात, जब राहुल गांधी जी के बहुत दिन के बाद एक क्वेश्चन मिला, जो क्वेश्चन हमें पिछले 10 साल से नहीं मिल रहे हैं, तो आज जो सुनहरा मौका राहुल गांधी को मिलने का बदौलत उन्होंने जब सवाल करने की कोशिश की, तो हमारे सीनियर मिनिस्टर हर्षवर्धन जी, जिनको कई तरीका पार्लियामेंट की कई तरीका ज़्यादा जानकारी में नहीं है मुझे लगा, क्योंकि सवाल पूछने के उपरांत मंत्री को यह कहना पड़ता कि सारे जवाब सदन की पटल पर रखा गया, लेकिन वो जब उनको कहना था कि सदन की पटल पर रखा गया जवाब, उसके बदले वो एक पेपर निकाला, और पेपर निकलते समय वो बोलने लगे कि राहुल गांधी जी की फलाना ये टिप्पणी की थी, कहाँ पता नहीं, बाहर उन्होंने सुना है कहीं राहुल गांधी जी की किसी चीज़ पे टिप्पणी किया था। तो हमारा ये तर्क था कि बाहर कहीं राहुल गांधी जी क्या करते हैं, क्या टिप्पणी दिए थे, इसका साथ आज की जो क्वेश्चन है इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो आप इस तरीके की क्वेश्चन की जो जानकारी देने की कोशिश आपको करना चाहिए, उसके बदले आप बाहर से कोई मुद्दा लाके सदन में खड़ा करते और राहुल जी के सदन के अंदर बहुत तरीके की शिकायत करने की कोशिश करते, सदन की दुरुपयोग करते हुए आप राहुल गांधी जी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी नहीं कर सकते। क्वेश्चन की संबंध बात बताइए, क्वेश्चन की बाहर बात बताने की जगह सदन नहीं है। बस उन्होंने जिस ढंग से ये बात रखे सदन के अंदर, हमें लगा कि ये सुनियोजित तरीके से ये किया गया, इसलिए कि राहुल गांधी जी को दोषी बनाकर दिल्ली के चुनाव में अगर कुछ फायदा मिले, ये इनका मकसद था। नहीं तो हर्षवर्धन जी ऐसा तो देखने में आज तक हमें कभी बुरा नहीं लगा, सोची समझी एक इंसान है, डॉक्टर है, इस तरीके की बर्ताव उन्होंने करता नहीं, बात कुछ ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन इस तरीके की अभद्र बर्ताव कभी उनको करने नहीं देखा। लेकिन आज मजबूरन उन्हें सामने रखकर ये कराया गया और सत्तारूढ़ पार्टी वो
डॉक्टर साहब को सामने रखकर वो फायरिंग कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ, इसलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव में इसका कोई फायदा निकले कि राहुल गांधी जी ये किया, उकसाया, वो किया, राहुल गांधी जी ठीक नहीं करते हैं, ये कांग्रेस भला कोई काम के नहीं, ये साबित करने के लिए ये सोची समझी एक तरीका निकाला गया जैसे कि राहुल गांधी जी को बदनाम किया जाए। और इसी उपरांत हमारे 2-4 एमपी विरोध जताते हुए उत्तेजित होकर सामने आ गए और हर्षवर्धन जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने हर्षवर्धन जी को कहा कि इस तरीके की आपको जवाब देना उचित नहीं था। हल्ला गुल्ला में सदन स्थगित हो गए, स्पीकर साहब के पास गए, राहुल जी भी गए। राहुल जी अपना अधिकार जताने की मांग की और हम सब ने स्पीकर साहब को ये शिकायत दर्ज करते हुए मांगा कि हर्षवर्धन जी को सदन के अंदर इस तरीके की बर्ताव करने के लिए उनको खेद प्रकट करना चाहिए। अगर हमारे पार्टी के मेंबर वो भी अगर कुछ गलतियां करे, हम भी तैयार है उन्हीं की जुबान से खेद प्रकट किया जाने के लिए। बस यही हमारा तर्क है। 1 मिनट now Lakshmi, I think you can ask question later. अभी अधीर रंजन जी ने आपको पूरा घटनाक्रम बताया और आप लोगों ने भी देखा है। एक सरकारी पक्ष का तरफ से कथन है और दूसरा हमारे जो नेता हैं सदन में अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने आपको ब्यौरा दिया और ख़ास तौर पे जो लोकसभा के माननीय स्पीकर साहब से राहुल गांधी जी और अधीर रंजन जी की भेंट हुई और क्या कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। बुनियादी बात एक है, ये सबको मालूम है कि दिल्ली में चुनाव हो रहा है, कल वोट पड़ना है। चुनाव की गहमा गहमी में कई बातें चुनाव सभाओं में कही गई हैं और अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी का ये कथन है कि उन्होंने बहुत शालीनता और संजीदगी से कहीं प्रचार किया है, वो बिल्कुल गलत है। हर चुनाव के अंदर कुछ ऐसी बातें बीजेपी की तरफ से की जाती हैं, स्वयं प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, इनके मंत्रियों के द्वारा, जिस पे चुनाव आयोग को जो कार्रवाई अभी तक हुई है उससे भी कहीं ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भड़काने वाली बातें, समाज में तनाव और टकराव लाने की बातें, हिंसा भड़काने की बात इनके मंत्रियों ने की है और वो जो कथन उन्होंने किए हैं उसके बाद वो मंत्रिमंडल में भी बने रहें, उनके खिलाफ उनका दल कोई कार्रवाई ना करे, उससे उनका सही माने में चाल और चरित्र सामने आता है, उनकी मानसिकता सामने आती है। जहाँ तक प्रश्न है बाहर चुनाव सभा में टिप्पणी करने का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समूचे विपक्ष पे कोई बात कही बार बार इसी दिल्ली के चुनाव में कि जहाँ देश के अंदर एनपीआर एनआरसी को लेके धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं, उन्होंने उसको नेशनल प्रोजेक्ट कहा और उसका पूरा आरोप विपक्ष पे लगाया कि विपक्ष एनार्की फैलाना, अराजकता फैलाना चाहता है और देश में अस्थिरता और साथ में देश में जो एकता है समाज की उसको तोड़ना चाहता। एक बहुत बड़ा आरोप है और असत्य है। फिर भी हमने सदन के अंदर, ना ही लोकसभा में ना ही राज्यसभा में, उस विषय को लाया और उस पर सदन को रोका जो प्रधानमंत्री ने कहा। वरना यही मापदंड विपक्ष भी प्रधानमंत्री पर और उनके मंत्रियों पर लगा सकता है कि आपने जो कहा है उसका पहले आप स्पष्टीकरण करें। और अगर बेरोजगारी के संदर्भ में एक टिप्पणी पर उनको आपत्ति है तो कल प्रधानमंत्री ने बहुत ही निजी स्तर पर जाकर, प्रधानमंत्री से अपेक्षा ये की जाती है कि उनको, देश के प्रधानमंत्री हैं सबके, कि उनके अंदर वो शालीनता ज़रूर रहेगी और गंभीरता रहेगी अपनी बात कहने की। उन्होंने भी कल जो, मैं व्यंग की बात नहीं करता, व्यंग होता राजनीति में, पर जो भाषा शैली का प्रयोग किया
वो प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता, गरिमा को। उनको स्वयं भी अपने पद की गरिमा देखनी चाहिए कुछ बात कहते हुए। और इसी विषय को आज वो असम में मैं सुन रहा था, कोकराझार में भी माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हमने तो बहुत कुछ सुना है और बरसों से और हर चुनाव में सुनते हैं। हमारी देशभक्ति को चुनौती दी जाती है। हम सरकार की आलोचना करते हैं तो हमको कहा जाता है पाकिस्तान की ज़बान बोलते हैं। हम पर ऐसा आरोप जो कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता, वो लगा। ये गंभीर बात कि तमाम प्रतिपक्ष के नेता, कल हमने इस बात को सदन में भी कहा था कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, दायित्व भी बनता है सरकार की आलोचना, सरकार का विरोध करना। इसके ये माने नहीं कि हम देश विरोधी हैं। बीजेपी की तुलना देश से नहीं की जा सकती। बीजेपी इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ द रूलिंग पार्टी, इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द कंट्री। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ बीजेपी और क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट अ एंटी नेशनल एक्ट, so which we have very strong objection to, and we have made it clear through our interventions, my own intervention yesterday. But we want to make it absolutely clear. Congress party and Shri Rahul Gandhi at no stage have expressed any intent to cause any hurt to the Prime Minister. We are a party which is committed to the Gandhian values and principles. We do not encourage an expression about the desperation of the unemployed youth may lead to a situation should not be attributed as Rahul Gandhi's or Congress party's intent to cause any hurt to the Prime Minister's person. तो ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई ऐसा ना कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की, हमारे दल की तरफ से, राहुल गांधी जी की कोई ऐसी नीयत नहीं है कि प्रधानमंत्री को किसी तरह का नुकसान पहुँचे। एक परिप्रेक्ष्य में वो बात कही गई कि नौजवान गुस्से में है, नौजवान हताश हैं, और आप लोग भी दिखाते हैं, छापते भी हैं कि नौजवानों को किस तरह से आज विश्वविद्यालयों में जो बच्चे हैं देश के, उनकी बात सुननी चाहिए। सरकार तो संरक्षक के रूप में है, प्रधानमंत्री और सरकार माता पिता के रूप में जिस तरह उनका जिम्मेवारी बनती है, सरकार भी एक तरह से पालक है। तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। गलती भी अगर उनसे हुई है विश्वविद्यालय में, अगर उनके दृष्टिकोण से तो किस तरह से प्रताड़ित हुए हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, वो भी इस देश के नागरिक और बच्चे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि इस बात को प्रधानमंत्री ने कल सदन में कह दिया। बीजेपी को अब इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, एक स्तर बना रहना चाहिए, गरिमा बनी रहनी चाहिए। हमारे नेता जो लोकसभा में इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अगर किसी सांसद ने कोई सीमा से बाहर वो कहते हैं हुआ तो वो भी खेद व्यक्त करेंगे। पर डॉक्टर हर्षवर्धन एक अच्छे व्यक्ति हैं, पर क्योंकि कल चुनाव है, क्योंकि कल दिल्ली में वोट पड़ना है, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। क्वेश्चन आर इज़ वेरी स्पेशल एंड वेरी फॉर्मल ओकेजन। I don't have to explain to you. Rahul Gandhi, as an elected member from the Wayanad constituency, has his rights and privileges. His question was listed concerning the medical college in his constituency. He cannot be denied his right, and the minister cannot violate the privileges of a member. That is what our protest has been. We hope that the Honorable Speaker will intervene firmly and timely to address this issue so that the members' privileges and rights remain protected. Thank you. Will you continue the protest on Monday also?